In which year was the Berlin Wall toppled by the people? 1989 में. Berlin Wall was the symbol of division between the capitalist and the communist world. Who was the founder of the Bolshevik Communist Party? To Stalin. Who was the leader of the Russian Revolution? To वो थे Lenin. In which year was the Russian Revolution held? In 1917. What were the ideals of the Russian Revolution? Socialism and communism. Which event was the biggest attempt in human history to abolish the institution of private property? So that is Russian Revolution. Next question, what kind of political party system was in the USSR? So that is one party system. And how many republics were in the USSR? So 15. Who initiated the reforms in the USSR? Mikhail Gorbachev. Which republics declared their independence from the USSR in 1991? Russia, Ukraine and Belarus. Who gave the theory of peaceful coexistence of the USSR with the West? Nikita Khrushchev. CIS stands for the Commonwealth of Independent States. Shock therapy is phenomenon associated with the US plans to root out the communism. Perestroika stands for restructuring. Glasnost stands for the openness. Which was the first republic of the USSR that declared its independence from the Soviet Union? Lithuania. Who became the first president of Russia? Yeltsin. Transition from an authoritarian system to capitalist system was followed by Central Asian and East European countries. Who directed the model of shock therapy? IMF and the World Bank. Which two republics of the USSR have had successionist movements? Chechnya and Dagestan. Which state witnessed a civil war for the 10 years till 2001? That is Tajikistan. The end of the Soviet bloc meant emergence of new states. And who became the sole superpower after the disintegration of the USSR? So that is US. For how many years the Communist Party ruled the Soviet Union? So that is 70 years. The Arab Spring took its roots in Tunisia. Which of the following statement is correct about the Berlin Wall? So the Berlin Wall was the greatest symbol of the Cold War, and the Berlin Wall was toppled by the people in 1989. Which of the following statements is correct about the USSR? Russia was accepted as the successor state of the Soviet Union, and CIS came into existence after the disintegration of the USSR. Which of the following statement is correct about the leader? So, Lenin was the leader of the Russian Revolution of 1917, and Mikhail Gorbachev withdrew Soviet troops from Afghanistan and Eastern Europe. Which of the following statements about the socialist revolution is correct? The socialist revolution was inspired by the ideals of socialism and communism. The USSR came into existence in 1917, and Vladimir Lenin was the founder, theoretician, and practitioner of Marxism. Which of the following statement is correct about the Soviet system? Mikhail Gorbachev. So Mikhail Gorbachev introduced economic and political reforms of Perestroika and Glasnost, and Mikhail Gorbachev was the first elected president of Russia. Which of the following statement is correct about the USSR? So USSR के बारे में जो चीज़ ठीक है वो ये है, Lithuania became the first of the 15 Soviet republics to declare its independence, and 3 Baltic republics of Estonia, Latvia and Lithuania became UN members in 1991, and CIS meant the Commonwealth of the Independent States. आगे क्वेश्चन है, which of the following statement is correct about the features of the Soviet system? So the Soviet state ensured the minimum standard of living for all the citizens, and the Soviet economy was faltering in the late 1960s and became stagnant. आगे क्वेश्चन है, why did Russia become the successor of USSR? तो ये क्यों बना था? It inherited the Soviet seat in the UN and it was the largest republic, that's why. उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आगे क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द सोवियत सिस्टम. सोवियत सिस्टम के बारे में कौन सी बात गलत है? द सोवियत सिस्टम वॉज बेस्ड ऑन द आइडियल्स ऑफ सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म. तो ये बात तो क्या है, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट है, ब्रेजनेव एमर्ज्ड एज अ नेशनल हीरो इन द अपोजिंग द कू इन 1991. तो ये बात क्या है, गलत है. Under the leadership of Yeltsin, Russia, Ukraine and Belarus, 3 major republics of the USA declared that the Soviet Union was disbanded. तो ये क्या है, ये बात
भी क्या है, गलत है। उसके बाद है द सोवियत इकोनॉमी यूजेस मच ऑफ इट्स रिसोर्सेज इन मेंटेनिंग अ न्यूक्लियर एंड मिलिट्री अर्जनल, तो ये बात क्या है, ठीक है। उसके बाद आगे क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर। तो जो चीज़ ठीक नहीं है वो ये है, द यूएसएसआर बिकेम द सोल सुपर पावर आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन, तो ये बात गलत है। बाकी फिर जो चीज़ ठीक है वो ये है कि द राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड द डिजायर फॉर द सोवरेनिटी इन द वेरियस रिपब्लिक्स इंक्लूडिंग रशिया एंड द बाल्टिक रिपब्लिक्स प्रूव्ड topped the final and most immediate cause for the disintegration of the USSR. And the ideological dispute over whether the socialist system would beat the capitalist system was not an issue anymore. And the end of the Soviet bloc meant the emergence of many new countries in the Central Asia. आगे क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट अबाउट द कंसिक्वेंसेज ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर। तो जो चीज़ ठीक नहीं है वो ये है कि साउथ एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज बिकेम पावरफुल एडवाइजर्स टू ऑल द सेंट्रल एशियन कंट्रीज, तो ये बात गलत है। बाकी जो चीज़ ठीक है वो ये है कि द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वॉज डोमिनेंट इकोनॉमिक सिस्टम एंड पावर रिलेशंस इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स हैव चेंज्ड आफ्टर 1990s एंड द वर्ल्ड बिकेम यूनिपोलर आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर। उसके बाद आगे क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वर नॉट द कंसिक्वेंसेज ऑफ द शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी का कौन सा स्टेटमेंट जो है वो कंसिक्वेंसेज नहीं था। तो यहाँ पे जो चीज़ है द रेट ऑफ इन्फ्लेशन वॉज वेरी लो, ये चीज़ नहीं थी। बाकी शॉक थेरेपी से क्या हुआ था, द वैल्यू ऑफ द रूबल रशियन करेंसी डिक्लाइन ड्रामेटिकली एंड द पीपल लॉस्ट ऑल देयर सेविंग्स एंड शॉक थेरेपी वॉज कॉल्ड द लार्जेस्ट गैराज सेल इन द हिस्ट्री ऑफ द यूएसएसआर। उसके बाद आगे क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द रिफॉर्म्स ऑफ द यूएसएसआर इन द 1990s। कौन सा जो है स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है रिफॉर्म्स ऑफ यूएसएसआर इन 1990s से रिलेटेड। तो द स्पीड ऑफ रिफॉर्म्स वर वेरी फास्ट एंड बेनिफिशियल फॉर द पीपल, ये चीज़ जो है वो ठीक नहीं है। बाकी जो चीज़ ठीक है वो ये है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन द यूएसएसआर वर इनिशिएटेड बाय द गोरबाचेव एंड पेरिस ट्रोइका एंड ग्लासनोस्ट वर द मेन रिफॉर्म्स पॉलिसीज इनिशिएटेड बाय द गोरबाचेव एंड Gorbachev's reforms speeded up the dissatisfaction of the nationalists. आगे क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द CIS। तो ये जो CIS है उसके बारे में कौन सी चीज़ सही नहीं थी। तो रशिया, बेलारूस एंड यूक्रेन डिक्लेयर टू द एनुअल द 1922 ट्रीटी, तो ये तो है क्या, ये ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है CIS वॉज एस्टेब्लिश्ड आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर, ये बात भी क्या है, ठीक है। फिर जो चीज़ गलत है वो क्या है, गलत ये है कि CIS वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1990, तो ये गलत है। और उसके साथ द फुल फॉर्म ऑफ CIS इज कंट्रीज ऑफ द इंडिपेंडेंट स्टेट, से भी बात क्या है, गलत है। अब हम बात करते हैं मिखाइल गोर्बाचेव। मिखाइल गोर्बाचेव इंट्रोड्यूस्ड रिफॉर्म्स, शॉक थेरेपी इकोनॉमिक मॉडल था, रशिया सक्सेसर ऑफ यूएसएसआर है, बोरिस येल्ट्सिन प्रेसिडेंट ऑफ रशिया था, वॉर्सो मिलिट्री पैक्ट था। उसके बाद नेक्स्ट कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम लियोनिड ब्रेजनेव, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस विद द वेस्ट निकिता क्रुश्चेव, कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर जोसेफ स्टालिन एंड प्रैक्टिशनर ऑफ मार्क्सिज्म व्लादिमीर लेनिन। उसके बाद रशियन रेवोल्यूशन 1917 में, ग्रेट टेरर 1930 में, फॉल ऑफ बर्लिन वॉल 1989 में, डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर 1991 में। उसके बाद रूबेल रशियन करेंसी है, ड्यूमा रशियन पार्लियामेंट है, शॉक थेरेपी इकोनॉमिक मॉडल है और पेरिस ट्रोइका इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है, लिबरल डेमोक्रेसी यूएस, सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म जो है यूएसएसआर और एडवाइजर्स ऑफ सेंट्रल एशियन कंट्रीज वर्ल्ड बैंक एंड IMF, और जो CIS है वो है सेंट्रल एशियन कंट्रीज। उसके बाद नेक्स्ट है तजाकिस्तान, सिविल वॉर डेगिस्तान, सेसेशनिस्ट मूवमेंट यूगोस्लाविया, क्रोएशिया एंड स्लोवेनिया एंड रशिया जो है वो क्या है, इनहेरिटर ऑफ UN एंड उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है, नेक्स्ट जो है वो ये है रिबेलियन इन चेकोस्लोवाकिया, लियोनिड और ब्रेजनेव, और रिबेलियन इन हंगेरी क्या है, निकिता क्रुश्चेव, ग्रेट टेरर क्या है, जोसेफ स्टालिन, और फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ रशिया क्या है, बोरिस येल्ट्सिन। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमें अरेंज करना है क्रोनोलॉजी में। तो सबसे पहले रशियन रेवोल्यूशन, फिर उसके बाद इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, फिर नेक्स्ट जो है वो है शॉक थेरेपी। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है, नाटो, फिर है फॉल ऑफ द बर्लिन वॉल, फिर है डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, फिर है CIS। आगे अगला क्वेश्चन जो है उसमें क्रोनोलॉजी में लगाएं। तो पहले है सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फिर उसके बाद है मल्टीपोलर वर्ल्ड, फिर उसके बाद है यूनिपोलर वर्ल्ड, फिर उसके बाद जो है वो क्या है, मल्टीपोलर वर्ल्ड। देखो सबसे पहले है सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फिर उसके बाद है बाईपोलर वर्ल्ड, पहले है सबसे पहले है क्या, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फिर है उसके बाद बाईपोलर वर्ल्ड, फिर है उसके बाद यूनिपोलर वर्ल्ड, फिर है उसके बाद मल्टीपोलर वर्ल्ड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है यहाँ पे,
पहले है रशियन रेवोल्यूशन, फिर है सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान, फिर है फॉल ऑफ द बर्लिन वॉल, फिर उसके बाद है डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है यहाँ पे, फर्स्ट गल्फ वॉर, फिर उसके बाद है ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच, फिर है ग्लोबल वॉर ऑन टेरर, फिर है ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है यहाँ पे, द डोमिनेंट ओनरशिप इन द यूएसएसआर वाज बेस्ड ऑन दी स्टेट ओनरशिप एंड द सोवियत यूनियन बिकेम अ ग्रेट पावर आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। आगे है वन पार्टी सिस्टम इन द यूएसएसआर रिप्रेजेंटेड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी। आगे क्वेश्चन है, द सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान इन 1979 weakened the system of the USSR. Gorbachev initiated the policies of economic and political reforms and democratization in the US. A coup that took place in the USSR in 1991 was encouraged by the Communist Party hardliners. उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है, जोसेफ स्टालिन began rapid industrialization and forcible collectivization of agriculture in the USSR. The transition from the socialism to capitalism is called the shock therapy. The model of shock therapy was directed by the IMF and the World Bank. Gorbachev introduced new economic policies named as perestroika and glasnost. The strongest feeling of the Central Asian state was nationalism. Russia was accepted as the successor state of the Soviet Union. The declaration of the CIS states came after the declaration of the disintegration of the USSR. Nikita Khrushchev suggested peaceful coexistence with the West. आगे है, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड फोर्सिबल कोलेक्टिवाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द यूएसएसआर बाय स्टालिन and state ownership was dominant form of the ownership in the USSR and the Soviet political system was based on the capitalist ideology and उसके बाद next जो है, the Soviet political system was based on the, पहले तो सोवियत की तो सोशलिस्ट थी ना, इसमें ऑप्शन है कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और गिल्ड सोशलिज्म और नन, ठीक है, तो सोशलिस्ट था। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है, यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी डोमिनेटेड द सोवियत यूनियंस पॉलिटिकल सिस्टम। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है, गोर्बाचेव इनिशिएटेड द रिफॉर्म्स इन द यूएसएसआर इन 1985। उसके बाद स्टालिन हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रेट टेरर ऑफ द 1930s। द सोवियत सिस्टम वॉज वेरी ब्यूरोक्रेटिक एंड ऑथोरिटेरियन, तो यह है ट्रू। Leonid Brezhnev proposed Asian collective security system with the detent phase in the relations with the US, तो ये क्या है, ट्रू है। आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर द वर्ल्ड बिकेम मल्टीपोलर, तो ये क्या है, फॉल्स है। उसके बाद नेक्स्ट टाइम द यूनियन ऑफ द सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक केम इनटू बीइंग आफ्टर द कैपिटलिस्ट रिवोल्यूशन इन 1917, तो ये क्या है, फॉल्स है। गोर्बाचेव डिसाइडेड टू नॉर्मलाइज रिलेशंस विद द वेस्टर्न कंट्रीज, तो ये क्या है, ट्रू है। रशिया, यूक्रेन एंड बोलिविया, थ्री मेजर रिपब्लिक्स ऑफ द यूएसएसआर डिक्लेयर्ड दैट द सोवियत यूनियन वाज डिसबैंडेड, तो ये क्या है, फॉल्स है। The three major Baltic republics of the USSR were Estonia, Latvia and Lithuania, तो ये क्या है, ट्रू है। सोवियत यूनियन used much of its resources in the maintaining a nuclear banned military arsenal, तो ये क्या है, ट्रू है। After the disintegration of the USSR, CIS came into existence, तो ये क्या है, ट्रू है। Russia was accepted as the successor of the USSR and inherited the Soviet seat in the UN Security Council, तो ये क्या है, ट्रू है। Mikhail Gorbachev was the first elected president of the USSR, ये क्या है, false है। Central Asian republics became a zone of the competition between the outside powers, तो ये क्या है, ट्रू है। Tajikistan witnessed a civil war that went on for 20 years till 2020 is true, and Indo-Russian relations are embedded in the history of trust and common interest, that is true, and Croatia, Slovenia, Bosnia and Herzegovina declared independence from the Czechoslovakia, तो ये क्या है, गलत है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब हम नेक्स्ट चैप्टर से डिस्कस करेंगे। सो द नेक्स्ट चैप्टर इज हियर, इसमें क्या है, फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, इन यूरोप विच रीजनल ऑर्गेनाइजेशन एमर्ज्ड एज अ न्यू सेंटर ऑफ पावर, तो वो क्या है, यूरोपियन यूनियन है। विच इंसिडेंट इंटीग्रेटेड यूरोप आफ्टर 1945, तो वो क्या है, कोल्ड वॉर। अंडर विच प्लान द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द इकोनॉमिक कॉपरेशन वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1948, तो वो क्या है, मार्शल प्लान है। आगे है, द काउंसिल ऑफ यूरोप वॉज एस्टेब्लिश्ड इन, तो वो है 1949 में। यूरोपियन यूनियन वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1992 में। एंड द सर्कल ऑफ 12 गोल्ड स्टार्स शोज इन द यूरोपियन यूनियन फ्लैग रिप्रेजेंट क्या, सॉलिडरिटी एंड हार्मनी। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है यहाँ पे, विच एग्रीमेंट एबोलिश्ड बॉर्डर कंट्रोल अमंग द EC मेंबर्स, तो वो क्या है, स्केनगन एग्रीमेंट। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है यहाँ पे, एशियन वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1967। एशियन वे इज अ फॉर्म ऑफ इनफॉर्मल एंड नॉन कन्फ्रंटेशनिस्ट। एशियन रीजनल फोरम वॉज एस्टेब्लिश्ड फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ द सिक्योरिटी एंड द फॉरेन पॉलिसी। In the Asian logo, the 10 stalks of paddy rice represents the 10 South Asian countries. उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है, सार्क was established in 1985. Afghanistan joined the SARC in 2007. Three pillars of ASEAN are Asian Security Community, Asian Economic Community, Asian Socio-Cultural Community. Who proposed the four modernization in 1973 in China? तो that is Deng Xiaoping. उसके बाद नेक्स्ट है, who announced the open door policy in China? तो वो है डेंग जियाओपिंग।
उसके बाद द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द ब्रिक्स आर, तो वो क्या है 5 है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, चाइना ज्वाइंट विच ऑर्गेनाइजेशन इन 2001, तो दैट इज WTO, एंड इंडिया अडोप्टेड लोकेस्ट पॉलिसी इन 1991 एंड NDB was formed in 2014, and what are the main objectives of SAARC? To foster the mutual understanding and to accelerate the economic growth and development and to respect the sovereignty and integrity of the member states. उसके बाद है what were the problems before the ASEAN countries at the time of its formation? So एक तो था problem of nation building, एक था pressure to align with the great power. उसके बाद next question है which of the following statement is correct? तो जो है करेक्ट वो एक बार देख लेते हैं। चाइना ओपन इट्स इकोनॉमी स्टेप बाय स्टेप एंड प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर लेड टू अ रिमार्केबल राइज इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड रूरल इनकम्स। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है यहाँ पे, एशियान 1967, यूरोपियन यूनियन 1992, ब्रिक्स 2006, सार्क 1985। उसके बाद maastricht ट्रीटी, यूरोपियन यूनियन, ट्रीटी ऑफ रोम, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, स्कैनगन एग्रीमेंट, अबोलिश्ड बॉर्डर कंट्रोल्स अमंग द EC मेंबर्स, ट्रीटी ऑफ रोम जो है वो क्या है, यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है, 10 स्ट्रोक्स ऑफ पैडी एशियन फ्लैग, 12 गोल्ड स्टार्स यूरोपियन यूनियन फ्लैग, 2 हैंड्स ज्वाइनिंग टुगेदर सार्क लोगो, लोटस फ्लावर लोगो ऑफ 8th समिट ऑफ ब्रिक्स। आगे है 4 मॉडर्नाइजेशंस, तो वो है चाइना, सेकेंड लार्जेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड तो दैट इज़ यूरोपियन यूनियन एंड अ ग्रुप ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, तो वो क्या है, एशियान है। और साफ्टा क्या है, साफ्टा जो है वो है सार्क। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एशियन सिक्योरिटी कम्युनिटी, तो वो है अपलिफ्टमेंट ऑफ दी क्वालिटी ऑफ लाइफ। एशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी क्या है, कोऑर्डिनेशन ऑफ सिक्योरिटी एंड फॉरेन। एशियन सोशियो कल्चरल कम्युनिटी क्या है, कॉमन मार्केट। एशियन रीजनल जो है वो क्या है, टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स फॉर्म। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है, एशियन वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय दी 5 कंट्रीज। एशियन वे इज अ फॉर्म ऑफ इंट्रैक्शन दैट इज इनफॉर्मल एंड नॉन कॉन्फ्रंटेशनिस्ट। एशियन रीजनल फोरम वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1994। आगे क्वेश्चन है, एशियन विजन 2020 इज डिफाइंड विद एन आउटवर्ड लुकिंग रोल फॉर द एशियन। आगे क्वेश्चन है, चाइनीज इकोनॉमी वॉज बेस्ड ऑन द सोवियत मॉडल। आगे क्वेश्चन है, चाइना एंडेड इट्स पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एसोसिएशन विद द US इन द 1972। आगे क्वेश्चन है, ब्रिक्स स्टैंड्स फॉर ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। आगे क्वेश्चन है, एशियन स्टैंड्स फॉर द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन। आगे क्वेश्चन है, सार्क स्टैंड्स फॉर द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर द रीजनल कोऑपरेशन। आगे है, द सिंगल मार्केट ऑफ यूरोप वॉज क्रिएटेड इन 1993। Denmark and Sweden refused to adopt the Maastricht Treaty and European currency, तो यह है true. China entered WTO in 2002, false. There are 12 stars in the flag of the European Union in total, true. Under the leadership of Zhao Enlil, communist revolution started in 1949 in China, तो ये क्या है, गलत है. Britain's Margaret Thatcher kept the UK out of the European market, true. China privatized its agriculture sector in 1992, क्या है, ये true है. And the full form of ASEAN is associated of the Southeast Asian nations, तो ये क्या है, true है. उसके बाद नेक्स्ट है, इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, ट्रू है. पंचशील अकॉर्ड या फिर थ्योरी और द डेक्ट्रॉइन ऑफ द 5 प्रिंसिपल्स वाज साइंड बिटवीन द इंडिया एंड रशिया, तो ये क्या है, गलत है. रशिया इज एन इंपॉर्टेंट कंट्री ऑफ द यूरोप, तो ये क्या है, फॉल्स है. उसके बाद टोटल मेंबर ऑफ द एशियन मेंबर्स आर 10, तो ये क्या है, ट्रू है. इजराइल इज द परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, तो ये क्या है, गलत है. ब्रिटेन्स लेफ्ट द मेंबरशिप ऑफ द यूरोपियन यूनियन इन 2020, ये क्या है, ट्रू है. उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है यहाँ पे कि एशियन इज़ प्रिंसिपली एन इकोनॉमिक एसोसिएशन, तो ये बात क्या है, ठीक है. एंड उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, इट्स इकोनॉमी इज़ ग्रोइंग मच फास्टर देन द US, EU एंड जापान, तो ये क्या है, ये क्या है, ये है, ठीक है. उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, यहाँ पे चाइना अनाउंस्ड ओपन डोर पॉलिसी एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन 1970s, तो ये बात क्या है, ठीक है. ओपन डोर पॉलिसी वॉज बेस्ड ऑन द सोवियत मॉडल, तो ये बात क्या है, गलत है. उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, यहाँ पे द यूरोपियन यूनियन हैज़ इवॉल्व्ड ओवर टाइम फ्रॉम एन इकोनॉमिक यूनियन टू अ पॉलिटिकल वन, तो ये बात क्या है, ठीक है. द यूरोपियन यूनियन हैज़ स्टार्टेड टू एक्ट मोर एज एन नेशन स्टेट, तो ये बात भी क्या है, ठीक है. उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है यहाँ पे, द एम ऑफ साफ्टा वॉज टू लोअर ट्रेड एंड टैरिफ बैरियर्स इन द साउथ एशिया रीजन, तो ये बात क्या है, ठीक है. साफ्टा वॉज साइंड इन 2006 एंड केम इनटू इफेक्ट ऑन 1 जनवरी 2008, तो ये बात क्या है, गलत है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट इन द साउथ एशिया हैज़ रैपिडली इंक्रीज्ड आफ्टर द कोल्ड वॉर, तो ये बात क्या है, तो ये बात जो है वो ठीक है. उसके बाद साउथ एशिया विल कंटिन्यू टू बी नोन एज द कन्फ्लिक्ट प्रोन जोन, तो ये बात क्या है, ये बात जो है वो ठीक नहीं है. उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, मतलब साउथ एशिया विल कंटिन्यू टू बी नोन एज द कन्फ्लिक्ट प्रोन जोन, ये तो वो ठीक है, लेकिन ये एक्सप्लेन जो है वो नहीं कर रहा है, ठीक है. उसके बाद अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो चैप्टर है उसकी, तो जो नेक्स्ट चैप्टर है वो क्या है, नेक्स्ट चैप्टर जो है वो ये है, विच कंट्री इज एन इंपॉर्टेंट प्लेयर इन द साउथ एशियन रीजन बट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ द चाइना, सो दैट इज नॉट द
कंसिडर्ड एज द पार्ट ऑफ द रीजन, तो वो है चाइना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द कंट्रीज remained a democracy through their existence as an independent country, तो वो है श्रीलंका एंड इंडिया। Which two countries have experienced both civilian and military government, so that is Pakistan and Bangladesh। In 2006 a successful popular uprising led to the restoration of democracy in, तो वो है नेपाल में। Which country is still a monarchy but the king has initiated plans for its transition to multi-party system, so that is Bhutan। Which country has the sultanate till 1968, तो वो क्या है, Maldives। In June 2005 the parliament of the Maldives voted unanimously to introduces a multi-party system। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, नेक्स्ट है, व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल अडॉप्टेड, तो वो है 2015 में। विच टू कंट्रीज साइंड द ताशकेंत एग्रीमेंट, तो वो क्या है, इंडिया एंड पाकिस्तान। शिमला एग्रीमेंट वॉज साइंड इन 1972 में। इंडिया एंड बांग्लादेश साइंड द फरक्का ट्रीटी फॉर शेयरिंग ऑफ द गंगा रिवर। विच कंट्री वॉज द फर्स्ट टू लिबरलाइज इट्स इकोनॉमी इन द साउथ एशियन रीजन, तो वो क्या है, श्रीलंका। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, वेयर डिड इंडिया एंड पाकिस्तान कंडक्ट न्यूक्लियर टेस्ट, तो वो है पोखरन और चागाई। उसके मतलब इंडिया में तो पोखरन में और पाकिस्तान चागाई में। शेख मुजीब बिलोंग टू विच पॉलिटिकल पार्टी, तो वो है द अवामी लीग। व्हेन डिड द किंग ऑफ नेपाल एबोलिश द पार्लियामेंट एंड डिसमिस्ड द गवर्नमेंट, सो दैट इज इन 2002। द नॉन वायलेंट मूवमेंट ऑफ नेपाल वॉज लेड बाय द 7 पार्टी अलायंस एंड द माओइस्ट्स एंड द सोशल एक्टिविस्ट्स। व्हेन डिड श्रीलंका गेट इंडिपेंडेंस, तो वो कब मिली थी उसको, 1948 में। आगे क्वेश्चन है, हाउ डिफरेंसेज एंड कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द कंट्रीज कैन बी रिजॉल्व पीसफुली, तो वो क्या है, by economic cooperation and persuasion and agreements। आगे है, no region exists in a vacuum, it is influenced by the outside powers because the superpowers have their own interests and the superpowers want to establish a balance of the power in the region। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है, इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप 1971 में, फरक्का ट्रीटी 1996 में, इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में, शिमला एग्रीमेंट 1972 में, अवामी लीग बांग्लादेश, एमडीपी मालदीव्स, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की भूटान, एसपीए नेपाल। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है यहाँ पे, ताशकेंत एग्रीमेंट इंडिया एंड पाकिस्तान, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया एंड श्रीलंका, ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप इंडिया एंड यूएसएसआर, नो वीज़ा एंड पासपोर्ट्स इंडिया एंड नेपाल। आगे है, लैंड लॉक्ड कंट्री विद मोनार्की, तो वो है भूटान। एन आइलैंड विच हैड द सल्तनत, दैट इज मालदीव्स। अ लैंड लॉक्ड कंट्री विद मल्टी पार्टी competition, so that is Nepal। and first liberalized its economy, that is Sri Lanka। उसके बाद है, full form of LTTE is Liberation Tigers of Tamil Illam, Liberation Tigers of Tamil Illam। India signed accord with the Sri Lankan government in 1987। आगे है, the Indian peacekeeping pulled out of Sri Lanka without attaining its objective in 1989 through the mediation of Norway and Iceland was the Sri Lankan crisis resolved। आगे है, Pakistan conducted its first nuclear tests at Chagai Hills। India and Pakistan signed the Indus Water Treaty with the help of World Bank। उसके बाद इंडस वाटर ट्रीटी वॉज साइंड इन 1916। भूटान वॉज द फर्स्ट टू लिबरलाइज इट्स इकोनॉमी इन द साउथ एशियन रीजन, तो यह है गलत। इंडिया कंडक्टेड इट्स सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट इन 1998, तो यह है ट्रू। सार्क इज अ मेजर रीजनल इनिशिएटिव बाय द साउथ एशियन स्टेट्स टू इवॉल्व द कॉपरेशन थ्रू द मल्टीलेटरल मीन्स, तो ये क्या है, ठीक। इंडिया इज सेंट्रली लोकेटेड एंड हैज सेवरल बॉर्डर्स विद द मोस्ट ऑफ द साउथ एशियन कंट्रीज, तो ये क्या है, ठीक है। इंडिया वॉन अ डिसिसिव वॉर अगेंस्ट द पाकिस्तान इन 1971, ये भी ठीक है। इन 1987 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम गॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द श्रीलंकन तमिल क्वेश्चन, तो ये भी ठीक है। श्रीलंका वॉज वन ऑफ द फर्स्ट डेवलपिंग कंट्री टू सक्सेसफुली कंट्रोल द रेट ऑफ द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, तो ये बात भी ठीक है। डिस्पाइट द रेवेजेस ऑफ इंटरनल कन्फ्लिक्ट श्रीलंका हैज मेंटेन्ड अ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम, तो ये बात क्या है, ठीक है। इंडिया एंड पाकिस्तान साइंड द ताशकेंत एग्रीमेंट इन 1971, तो ये बात क्या है, गलत है। उसके बाद है यहाँ पे, इंडिया हैज़ रिमेन्ड अ डेमोक्रेसी थ्रू आउट इट्स एग्जिस्टेंस एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, ठीक है। उसके बाद देयर इज मल्टी पार्टी सिस्टम इन इंडिया, ठीक है। एंड देयर इज अ वाइड स्प्रेड सपोर्ट फॉर द डेमोक्रेसी इन द साउथ एशियन कंट्रीज, तो ये क्या है, तो ये बात भी ठीक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, इन साउथ एशिया ऑर्डिनरी सिटीजन्स बिलोंगिंग टू द डिफरेंट रिलीजन व्यूज रिच और पुअर सपोर्ट फॉर रिप्रेजेंटेटिव्स डेमोक्रेसी, तो ये बात भी ठीक है। उसके बाद डेमोक्रेसी कैन फ्लरिश एंड फाइंड सपोर्ट्स इन प्रोस्पेरस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, तो ये बात क्या है, गलत है। देर इज अ मिक्स्ड रिकॉर्ड ऑफ द डेमोक्रेटिक एक्सपीरियंसेस इन द साउथ एशियन कंट्रीज, तो ये बात भी ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है, साउथ एशियन रीजन इज नेवर इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्सटर्नल पावर्स, तो ये बात क्या है, गलत है। उसके बाद अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट इन द साउथ एशिया हैज़ रैपिडली इंक्रीज आफ्टर द कोल्ड वॉर, तो ये क्या है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें से क्वेश्चन जो है वो हम देख लेते हैं। तो वो जो क्वेश्चन है वो ये है, सबसे पहला, व्हेन वाज द लीग ऑफ द नेशंस फॉर्म्ड, तो ये फॉर्म हुआ था आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर।
आगे क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूशन बिकेम द सक्सेसर ऑफ द लीग ऑफ द नेशंस, तो वो क्या है यूएन. एंड हाउ मेनी मेंबर्स साइन द यूनाइटेड चार्टर, तो वो क्या है 51. व्हेन डिड इंडिया ज्वाइन द यूएन, तो वो क्या है, तो वो है 30 अक्टूबर 1945. यूएन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 24 अक्टूबर. व्हाट डज द एम्बलम ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिग्निफाई, तो वो करता है वर्ल्ड पीस को. द यूनाइटेड नेशंस वाज नॉट क्रिएटेड टू टेक ह्यूमैनिटी टू हेवन बट टू सेव इट फ्रॉम द हेल. दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय डैग हैमर्सजोल्ड हु इलेक्ट्स नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूएनएससी, तो वो है जनरल असेंबली. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बिटो पावर इन द यूएन, तो वो कौन है, तो वो है परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएनएससी. उसके बाद नेक्स्ट है बिग थ्री कंप्राइजेज ऑफ रूजवेल्ट, चर्चिल एंड स्टालिन. उसके बाद व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईएमएफ, तो वो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. उसके बाद डब्ल्यूटीओ स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएनईपी स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम. उसके बाद है हु अपॉइंट्स द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूएन, तो वह जनरल असेंबली. विच फॉर्म द फॉलोइंग इज कंसर्न विद द सेफ एंड पीसफुल यूज ऑफ द न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी अंडर द यूएन सिस्टम, तो वह है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी. आगे है हु इलेक्ट्स जजेस ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो वह है जनरल असेंबली एंड यूएनएससी. उसके बाद नेक्स्ट जो है वो ये है द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूएन इज इलेक्टेड फॉर हाउ मेनी ईयर्स, तो वो है 5 ईयर्स. विच ऑफ द फॉलोइंग options about the ICJ is correct, तो वो है the decisions of the ICJ are binding on the member states. Okay. उसके बाद नेक्स्ट है which of the following statements are correct about the international organizations, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हेल्प कंट्रीज टू रिजॉल्व देयर डिस्प्यूट्स पीसफुली एंड सम चैलेंजिंग इश्यूज कैन बी डील्ड विद बाय दीज ऑर्गेनाइजेशंस. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट द यूएनजीए, तो यूएनजीए के बारे में कौन सी चीज़ें ठीक है. द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूएनजीए इज इन न्यूयॉर्क एंड द यूएनजीए इज अ यूनिक फोरम फॉर द मल्टीलेटरल डिस्कशंस एंड इट प्रमोट्स द रूल ऑफ लॉ. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, तो वो क्या है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल डील्स विद इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल एंड हेल्थ मैटर्स and it is the largest and most complex subsidiary body and the specialized agencies such as ILO, WHO, FAO etc. come under the ECOSOC. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ठीक नहीं है, तो यहाँ पे जो है बहुत सारे पॉइंट्स ठीक नहीं है. जो चीज़ ठीक है मैं वो बात करती हूँ. तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हेल्प्स कंट्रीज टू मेक बेटर लिविंग कंडीशंस फॉर दी ऑल. उसके बाद विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द लीग ऑफ नेशंस, तो जो चीज़ ठीक नहीं है वो बताना है. तो द लीग ऑफ नेशन वॉज एस्टेब्लिश्ड आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकंड, ये बात तो गलत है. बाकी जो चीज़ ठीक है वो ये है द लीग ऑफ नेशंस वॉज द इनिशिएटिव ऑफ द अलाइड पावर्स. द लीग ऑफ नेशंस वॉज अनेबल टू फुलफिल द एस्पिरेशंस ऑफ द वर्ल्ड कम्युनिटी एंड द पावर्स एंड फंक्शंस वर ट्रांसफर टू द यूनाइटेड नेशंस. उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है विच इज़ नॉट द करेक्ट अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द यूएन, तो यहाँ पे जो चीज़ है वो ये है कि द यूएन हैज़ 45 फाउंडिंग मेंबर्स, तो ये बात जो है वो क्या है गलत है. जो चीज़ ठीक है वो ये है द यूएन वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन 24 अक्टूबर 1945, ये ठीक है. एंड अलाइड नेशन सपोर्टेड द अटलांटिक चार्टर एंड साइंड द डिक्लेरेशन बाय द यूनाइटेड नेशंस, तो ये बात ठीक है. एंड विद द एंड ऑफ द सेकंड वर्ल्ड वॉर द यूएन वाज फॉर्म टू फोस्टर द कोऑपरेशन अमंग द नेशंस स्टेट्स. उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है विच स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट द फॉर्मेशन एंड फंक्शंस ऑफ द जनरल असेंबली, जो चीज़ जो है वो सही नहीं है वो बताना है. तो यहाँ पे जो है वो है एक देखो यहाँ पे जो है ना डिसीजंस टेकन बाय द जनरल असेंबली आर बाइंडिंग ऑन ऑल द स्टेट्स, तो ये बात जो है वो गलत है. एंड उसके बाद द जनरल असेंबली इज वन ऑफ द स्पेशलाइज्ड एजेंसीज ऑफ द यूएन, ये बात भी क्या है गलत है. फिर जो चीज़ ठीक है वो ये है इन द जनरल असेंबली ईच स्टेट हैज़ 1 वोट, ये ठीक है. एंड देयर आर 192 स्टेट्स इन द जनरल असेंबली, ये बात भी क्या है ठीक है. उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट द यूएनएससी, तो यूएनएससी के बारे में जो चीज़ ठीक नहीं है वो द परमानेंट मेंबर्स ऑफ वीटो पावर, तो ये गलत है. और उसके बाद द डिसीजंस आर बाइंडिंग ऑन ऑल द मेंबर्स कंट्रीज, ये बात भी गलत है. जो चीज़ ठीक है वो ये है देयर आर 10 परमानेंट मेंबर्स इन द यूएनएससी एंड देयर आर 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स इन द यूएनएससी. उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है यहाँ पे जो चीज़ ठीक है वो बताना है. तो इंडिया हैज़ emerged एज एन इकोनॉमिक पावर ऑन द वर्ल्ड स्टेज. इंडिया हैज़ पार्टिसिपेटेड इन वर्चुअली ऑल ऑफ द इनिशिएटिव्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस. इंडियाज रोल इन द यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स इज अ लॉन्ग एंड सब्सटेंशियल वन. उसके बाद यूनेस्को एजुकेशनल सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है. यूनिसेफ रिलीफ फंड फॉर द चिल्ड्रन है. ILO लेबर रूल्स बताता है. WHO गुड हेल्थ फॉर ऑल. एंड लीग ऑफ नेशंस 1919 में, यूनाइटेड नेशंस 1945 में, टेहरान कॉन्फ्रेंस 1943 में, अटलांटिक चार्टर जो है वो 1941 में. ECOSOC ये क्या है स्पेशलाइज्ड एजेंसी. ICJ जो है वो क्या है इंटरनेशनल कोर्ट. सिक्योरिटी काउंसिल क्या है वीटो पावर. जनरल असेंबली क्या है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल स्टेट्स. उसके बाद वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड्स लोन्स एंड ग्रांट्स. IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. WTO GATT. IAEA पीसफुल यूज ऑफ द न्यूक्लियर एनर्जी. और ट्राइगवे लाई नॉर्वे. कुर्ट व्लाडिहिम ऑस्ट्रिया. और बुट्रोज घली इजिप्ट एंड कॉफ़ी ए अनान घाना. उसके बाद नेक्स्ट जो है वो ये हमें क्रोनोलॉजी में लगाने हैं. तो क्रोनोलॉजी
टर्मिनोलॉजी में लगाएंगे तो सबसे पहले जो है वो है ILO, फिर ILO, फिर उसके बाद यूनेस्को, फिर है WTO एंड फिर है ह्यूमन राइट्स काउंसिल। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, नेक्स्ट जो काउंसिल है वो ये है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है यहाँ पे, अरेंज द टेन्योर ऑफ द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द UNO हमें बताना है। तो जो सबसे पहले है वो हो जाएगा डेग हैमर्स्कजोल्ड, और फिर है उसके बाद यू थेंट, फिर है उसके बाद बुट्रोस घलिंग, फिर है उसके बाद कॉफ़ी अनन। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, अरेंज करना है फिर से क्रोनोलॉजी एस्टेब्लिशमेंट के हिसाब से। तो सबसे पहले हो जाएगा लीग ऑफ नेशन, फिर हो जाएगा वर्ल्ड बैंक, फिर हो जाएगा एमनेस्टी इंटरनेशनल, फिर हो जाएगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है यहाँ पे, द मेंबर स्टेट्स ऑफ द इकोसोक आर इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली एंड द रिप्रेजेंटेटिव हेड ऑफ द UN इज सेक्रेटरी जनरल एंड सेक्रेटरी जनरल ऑफ द UN इज इलेक्टेड फॉर द 5 years रिन्यूएबल टर्म है ये। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है यहाँ पे, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है यहाँ पे, वो ये है कि ट्राइगवे लाइव वर्कड फॉर द सीज फायर बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान ऑन द कश्मीर इशू and Antonio Guterres is the present UN Secretary General and only the permanent members of the Security Council passes the veto power. In the General Assembly, each state has one vote. Only the permanent members of the Security Council can pass the veto power. तो ये बात क्या है, ठीक है, and veto power is a kind of negative power, तो ये बात भी ठीक है। The Secretary General uses the veto power when not satisfied with any decision of the General Assembly, तो ये बात क्या है, गलत है। One veto can stall a Security Council resolution, तो ये बात ठीक है। All security and peace related issues are dealt with the within the Security Council, ये बात भी ठीक है। Humanitarian policies are implemented by the main organs and specialized agencies spread across the globe, तो ये क्या है, गलत है। Having consensus among the 5 permanent members on the security issues is vital for the decisions of the Security Council implementation, ये बात क्या है, ठीक है। And the members of the General Assembly are automatically the members of all the other principal organs and specialized agencies of the UN, क्या है, ठीक है। US is the largest contributor to the UN, क्या है, ठीक है। And the US has many nations in the UN bureaucracy, तो ये क्या है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है यहाँ पे, the UN is regarded as the most important international organization in the today's world and the United Nations represents the great hope of humanity for the peace and progress, तो ये बात क्या है, ठीक है। एंड उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है यहाँ पे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आर द सुपर स्टेट विद अथॉरिटी ओवर इट्स मेंबर्स, तो ये बात क्या है, गलत है। एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कैन हेल्प मेंबर स्टेट्स टू रिजॉल्व देयर प्रॉब्लम्स पीसफुली, ये क्या है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कैन प्रोवाइड मैकेनिज्म्स रूल्स एंड ब्यूरोक्रेसी टू हेल्प मेंबर स्टेट्स, तो ये बात क्या है, ये बात ठीक है। एंड द यूनाइटेड नेशंस डज नॉट हेल्प द स्टेट्स इन द मैटर ऑफ द वॉर एंड डिस्प्यूट्स, तो ये बात क्या है, गलत है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है यहाँ पे, द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर टू प्रमोट प्रॉस्पेरिटी पीस एंड कोऑपरेशन अमंग द नेशंस स्टेट्स, तो ये बात क्या है, ठीक है। एंड द UN हैज 7 प्रिंसिपल ऑर्गन्स विद द मल्टीट्यूड ऑफ द स्पेशलाइज्ड एजेंसीज, तो ये बात क्या है, गलत है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है यहाँ पे, ICJ 15 जजेस आर इलेक्टेड बाय द UN जनरल असेंबली फॉर द 9-year टर्म्स, तो ये बात क्या है, ये बात जो है वो ठीक है। एंड ICJ डिसाइड्स डिस्प्यूट्स बिटवीन द स्टेट्स दैट रिकॉग्नाइज ज्यूरिसडिक्शन, तो ये बात क्या है, गलत है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिक्योरिटी काउंसिल कंप्राइजेस 15 मेंबर स्टेट्स, तो ये बात जो है वो है ठीक है। एंड ऑल 15 मेंबर्स हैव वीटो पावर, तो ये बात क्या है, गलत है। एंड द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल प्रमोट्स इंटरनेशनल इकोनॉमिक सोशल एंड ह्यूमैनिटेरियन कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। इकोसोक इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स UN बॉडी, ये बात भी क्या है, ठीक है। एंड इन 1948 द जनरल असेंबली अडॉप्टेड अ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, बात ठीक है। दिस डिक्लेरेशन प्रोक्लेम सिविल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक राइट्स टू ऑल ह्यूमन बींग्स, ये बात ठीक है। द UN चार्टर गिव द परमानेंट मेंबर्स अ प्रिविलेज्ड पोजीशन बाय गिविंग देम द वीटो पावर, ठीक है। एंड दिस प्रिविलेज वाज गिवन टू देम टू ब्रिंग अबाउट द स्टेबिलिटी एंड पीस इन द वर्ल्ड आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर, इज वो भी क्या है, ठीक है। अ कंट्री कैन बी री इलेक्टेड इमीडिएटली आफ्टर द कंप्लीटिंग अ टर्म ऑफ 2 years इन द UNSC, ये बात क्या है, गलत है। एंड द नॉन परमानेंट मेंबर्स आर इलेक्टेड इन अ मैनर दैट दे रिप्रेजेंट ऑल द कंटिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, तो ये बात क्या है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, एक्सप्लेन द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द UN इज टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड कोऑपरेशन एंड टू मेक बेटर लिविंग कंडीशंस फॉर द ऑल, हाईलाइट एनी वन बेनिफिट ऑफ हैविंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन and international organization helps member states to resolve their problems peacefully. Who is the present secretary general of the UN who belongs to the Europe, तो ये ढूंढ लेना। एंड इसमें पुरानी बुक है कि नई बुक है, आई डोंट नो। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एंटोनियो गुटेरेस इज द प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द UN who belongs to the Portugal. And how many permanent members and how many non-permanent members and they are in the UN Security Council? So there are 5 permanent members and 10 non-permanent members in the UNSC. And how many founder states signed the United Nations Charter in 1945? तो वो है 51 states signed the United Nations Charter in 1945. Okay, what is the highest functionary of the UN called? Highest functionary of the UN is Secretary General. And next time, headquarter of UNICEF is located in New York City. And organized structure of the General Assembly includes representatives of United Nations and each state has 1 vote. Thank you so much for watching and stay connected. All the best for your exams.